introduce you to Anna Huang. Who is she? She is an author and she writes like a लड़की लोग का फेवरेट ऑथर बोलते हैं ना, वो कम्प्लीटली हमारे डिल्यूजन को फीड करती है. शी इज दैट टाइप ऑफ राइटर. एक तो बुक का मूवी अडेप्टेशन होने वाला है विच इज काइंड ऑफ डार्क एंड सैडली कोलकाता में सब अवेलेबल नहीं है, सो आई कांट. एंड आइस ब्रेकर भी बहुत अच्छा बुक है. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Aarti Sharma and you're watching The Sharma Ji, and I am back with yet another interesting video. I am quite a reader, so I have a lot of books and I wanted to share those books with you so you can like read it and have fun with all those books. And today I'm shooting a long format video after a really long time. Like I was out of ideas. Like YouTube is such a saturated place right now and I don't know what to do. That's why I stopped, took a break, and like now I'm with a fresh mind and let's create content regularly. And I will like make sure that I'll post at least 2 long format videos in a month. Let's see how it goes. कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं but करते ही बहुत कम है. Anyways, let's get started. And by the way, I wanted to tell you guys this is like a stack of bangles and मैं western wear पे ये bangles पहनूं and it looks so amazing. Like we should normalize wearing Indo-Western. Like Indo-Western अच्छा लगता है if you style it correctly. अगर आपने अच्छे से उसको स्टाइल ही नहीं किया तो it will look very bad. So let's get started. So please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel The Sharma Ji, and please do follow my Instagram channel. It's Aarti2512. So I have segregated my books according to like genre wise, I guess, and maybe author wise. So let's start with Anna Huang. Let me just introduce you to Anna Huang. Who is she? She is an author and she writes like a लड़की लोग का फेवरेट ऑथर बोलते हैं ना, वो कम्प्लीटली हमारे डिल्यूजन को फीड करती है. शी इज दैट टाइप ऑफ राइटर एंड शी रोट सो मेनी बुक्स. शी हैज सो मेनी सीरीज एंड मेरे पास एक ही कंप्लीट सीरीज है उसका. बाकी सारा सीरीज में से 1 or 2 बुक्स है मेरे पास. सो लेट्स स्टार्ट. और सीरीज में मेरे पास है इस ट्विस्टेड. सीरीज का नाम क्या था? आई डोंट रिमेम्बर सीरीज का नाम. वेट, व्हाट ए रीडर आई एम. सीरीज का नाम आई फॉरगॉट. ठीक है, ट्विस्टेड बुक सीरीज आई गेस. ठीक है, तो मेरे पास चारों का चारों बुक्स है. ठीक है, एंड इन दिस 4 books, आउट ऑफ दिस 4 books आई रियली लव ट्विस्टेड हेट. बहुत लोगों को ट्विस्टेड गेम्स अच्छा लगता है. दिस लेट मी जस्ट एटलीस्ट ब्रीफ यू अबाउट एवरी बुक. लाइक शुरू होता है इस बुक से ट्विस्टेड लव से. ठीक है, इसमें है एलेक्स वोल्कोवो एंड एवा चेन. ठीक है, दिस इज अ बिलियनर रोमांस. बहुत ही ग्रम्पी एक्स सनशाइन वाला. ठीक है, बहुत ही क्यूट सी है. वो यर्न करता है बहुत ऐसे. एवा चेन शी इज वेरी क्यूट सी, वेरी सनशाइनी. एंड एवा चेन का भाई का बेस्ट फ्रेंड होता है एलेक्स वोल्कोवो. तो इट्स ऑल्सो लाइक ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड शो. तो इट इज क्वाइट नाइस. बट असल में कौन सा बिलियनर मिलता है ऐसे ही, राइट? ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड में भी मिल जाए बट बिलियनर लाइक एलेक्स वोल्कोवो can't find it. So it's nice. For the second book we have I guess Twisted Hate. Yeah, जो मुझे पसंद है. नहीं, Twisted Hate 3 है, sorry. Twisted Games 2 है. Twisted Games में है राइज लार्सन, I guess I'm pronouncing it right, and Princess Bridget. ठीक है, तो इसमें राइज लार्सन प्रिंसेस ब्रिजेट का बॉडीगार्ड होता है एंड फॉरबिडन रोमांस है ये. तो इट इज ऑल्सो क्वाइट नाइस. बट अगेन ऐसा ट्रोप कहाँ मिलता है, राइट? जैसे मैंने बोला, एना हुआंग डिल्यूजन को फीड करती है. नाउ द थर्ड बुक विच इज ट्विस्टेड हेट. दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक बुक. इसमें है जॉश चेन एंड जूल्स एम्ब्रोस. जूल्स एम्ब्रोस इज एवा चेन्स बेस्ट फ्रेंड. एवा चेन, दिस एवा चेन, शी इज her best friend, and Josh Chen is Ava Chen's brother. Yeah, so I guess you can connect the dots. So Twisted Hate, Josh Chen is like they are both rivals. They don't like each other, they hate each other. This is like enemies to lovers romance. It is quite nice and also very like not much delusional and like ये असली में हो सकता है क्योंकि जो सैमरोथ I guess she was a lawyer and Josh Chen, he is a doctor. So it is a very realistic story. That's why I love it. And the last book in this series is Twisted Lies. इसमें है Christian Harper and Stella Alonso, जिसमें Christian Harper ये भी बिलियनर होता है and he was a stalker of Stella. ठीक है, तो स्टॉकर जैसा बिहेव कर रहा है लड़का कोई, ये सिर्फ पढ़ने में अच्छा लगता है. रियल लाइफ में कोई करेगा तो आई विल फ्रीक आउट. सो लेट्स बी ऑनेस्ट.
तो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस। चारों बुक ही बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, एंड इट इज़ क्वाइट नाइस। अगर आप एना हुआंग का सीरीज़ कोई भी शुरू करना चाहते हो तो यूजुअली लोग यही सीरीज़ से शुरू करते हैं। इट हैज़ 4 बुक्स, क्वाइट कलरफुल, सो यू कैन रीड दिस 4 बुक्स। देन एना हुआंग के बुक्स में से मेरे पास और 2 बुक है विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सीरीज़, बट मेरे पास पूरा सीरीज़ नहीं है। सो आई हैव द स्ट्राइकर, ठीक है। ये इसमें है एशर डोनोवन और स्कारलेट डुबोइस। ये वो है, I forgot, footballer, yeah, Asher Donovan is a footballer, and ये भी like Scarlett Dubois, it's like Asher Donovan और Scarlett Dubois का जो ब्रदर है वो दोनों राइवल्स होता है, एंड इसका ब्रदर Scarlett Dubois मतलब फीमेल लीड का जो ब्रदर होता है वो बहुत ही अगेंस्ट होता है इस चीज से, बट दे फेल इन लव एंड वैसा वाला। इट इज क्वाइट स्लो, लाइक आप बुक का लेंथ से बता सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा यर्निंग है, बट लास्ट में जाके इट इज क्वाइट नाइस। यू कैन सी दिस पिक्चर, इट इज क्वाइट नाइस। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली अच्छा तो लगेगा। एना हुआंग डजंट डिसअपॉइंट। देन वी हैव किंग ऑफ प्राइड। ये किंग ऑफ सिंस के सीरीज में से है, किंग ऑफ प्राइड। अभी रिसेंटली एना हुआंग है किंग ऑफ सिंस के सीरीज का अगर सेकंड लास्ट बुक है किंग ऑफ लिटनी, जिसमें इंडियन फीमेल लीड है माया। ओके, तो आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड उसको लेने के लिए, अभी तक लिया नहीं है मैंने। तो ये है किंग ऑफ प्राइड, इसमें है काई यंग एंड इजाबेला वेलेंशिया। इसमें ये इट इज लाइक इजाबेला वेलेंशिया एक बहुत ही फेमस बार है, मतलब सारे किंग ऑफ सिंस बुक में पढ़ेंगे आप। एक फेमस क्लब है, सॉरी क्लब, वो उधर काम करती है इजाबेला, एंड वहाँ पे काई यंग एक मेंबर, वीआईपी मेंबर होता है, तो दे फेल इन लव ऐसा वाला। ये भी फॉरबिडन रोमांस जैसा ही है, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली इजाबेला लोअर स्टेटस से बिलोंग करती है एंड काई यंग हायर स्टेटस से बिलोंग करता है, सो इट इज क्वाइट नाइस। तो यही थे सारे एना हुआंग के बुक्स, एंड आई एंड लाइक वो कि लाइक मैं आपको दावा देके बता सकती हूँ कि इट इज़ वेरी स्पाइसी एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हाँ, आपको थोड़ा देर बाद ऐसे थोड़ा सा वो लग सकता है या इट इज़ क्वाइट स्टेबल वैसा वाला कि लाइक और ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, क्योंकि सबका हैप्पी एंडिंग है, ठीक है, स्पॉइलर, लेकिन ठीक है, फॉर अ स्टार्ट ऑफ रीडिंग बुक्स यू कैन रीड दिस बुक्स। Then we have another author, Lauren Asher. She is also quite similar to Anna Huang. उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब सेम टाइप ऑफ रोमांस बहुत पसंद आता है। उसका भी मेरे पास 1 2 3 4 5 बुक्स है इसका, एंड उसमें से एक सीरीज है। मेरे पास सारे ऑथर्स नहीं, मे बी 3 4 ऑथर्स के सेम मतलब सीरीज के सारे बुक्स है। सो ये सीरीज है, इसका फर्स्ट बुक है द फाइन प्रिंट, ठीक है, फाइन प्रिंट, जिसमें लिखा हुआ है ड्रीमलैंड बिलियनर। इसमें है रोवन और जारा। सो वही है, इट इज लाइक थोड़ा सा स्लो एंड लाइक तीनों ही बुक्स है, सीरीज में 3 बुक्स है, द फाइन प्रिंट, फिर सेकंड है ये टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर है फाइनल ऑफर। आई गेस मैं बहुत पहले पढ़ी थी तो मेरे को लगता है कि शायद ये तीनों बुक्स 3 भाई पे है। इसमें है टर्म्स एंड कंडीशन, सेकंड बुक में डेक्लैन और आइरिस, फाइनल ऑफर विच इज द लास्ट बुक, उसमें है कैलहन और एलेना। तो ये तीनों ही मतलब 3 भाई पे है, एंड एक इन लोग के पास बहुत ही बड़ा ड्रीमलैंड वो होता है, एडवेंचर पार्क, जिसमें वहाँ पे वो लोग बिलियनर होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही थोड़ा सा अच्छा है, बट वेरी स्लो, काइंड ऑफ बोरिंग, मतलब आई एम सॉरी इफ किसी को लॉरेन आशर पसंद है, बट काइंड ऑफ बोरिंग। जैसे आप देख सकते हैं फाइनल ऑफर जो लास्ट वाला बुक है ये बहुत मोटा है, सो मुझे नहीं लगता है कि इट वाज सपोज टू बी दिस थिक, लाइक ठीक है, इट्स ओके। देन लास्ट बुक विच आई हैव फ्रॉम लॉरेन आशर इज लव रीडिजाइन, इसमें जुलियाना और दालिया है। मुझे याद है जुलियन और दालिया, सॉरी जुलियाना नहीं, जुलियन और दालिया, ये वाला आई गेस चाइल्डहुड रोमांस है। मतलब इसमें दालिया मतलब पहले इन दोनों का होता है कुछ, उसके बाद देन दे ब्रेकअप एंड शी गोज टू अनदर सिटी फॉर वर्क, फिर वापस आते हैं एंड दे रियूनाइट, वैसा वाला स्टोरी है इसका। अगेन सेम काइंड ऑफ बोरिंग, सो इफ यू वांट यू कैन रीड, अगर आपको स्लो बर्न पसंद है यू कैन रीड लॉरेन आशर। द नेक्स्ट ऑथर वी हैव जेके राउलिंग, एंड प्लीज डोंट जज मी कि मैं सिर्फ 2 ही बुक्स पढ़ी हूँ हैरी पॉटर का, जबकि मैं एक पॉटर हेड हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। तो फर्स्ट बुक है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट। बुक्स बहुत अलग है मूवी से, लेकिन जो पुराना मूवी था मतलब सीरीज था हैरी पॉटर का, दैट इज रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन, जैसा मैंने 2 बुक पढ़ के ही किया था वैसा ही था, एंड लाइक बचपन से हैरी पॉटर देखता ही हूँ मैं यार, एंड मेरा तो सपना था ही हॉगवर्ट्स जाने का, तो ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑथर विच इज लाइक बहुत, शी इज अ वेरी लाइक पॉपुलर ऑथर। अभी उसका रिसेंट एक तो बुक का मूवी अडेप्टेशन होने वाला है विच इज काइंड ऑफ डार्क, एंड इफ यू हैवंट गेस्ड इट शी इज कॉलिन हूवर। किसी के पास मतलब किसके पास ये बुक नहीं होगा कॉलिन हूवर का, लाइक सबने मुझे मतलब जो रीडर्स है एक ना एक बार कॉलिन हूवर का बुक पढ़ा ही होगा। सो कॉलिन हूवर का बुक में से मेरे पास 4 बुक है, ठीक है, ओके। तो पहला है अगली लव। अगर आपको अपना ब्रेन थोड़ा सा वो करना है,
शॉक करना है एंड आप कंफ्यूज होना है, अगली लव इज फॉर यू। सो इसमें बेसिकली जो प्रोटैगनिस्ट होता है मतलब मेल, वो थोड़ा सा वो होता है, ब्रोकन होता है, एंड जो इसमें फीमेल लीड होती है शी लेट्स हिम यूज हर, सो वैसा टाइप होता है। एंड लास्ट में मतलब इट इज नाइस बट ठीक है, मतलब इसका ये सब मतलब इसमें अंदर बहुत सारा वो है, छोटे छोटे कोट्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉलिन हूवर का बुक्स इज वेरी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला बुक, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग स्पाइरल करना है, यू कैन रीड अगली लव। कॉलिन हूवर का सारा बुक्स ही वैसा होता है कि इट इज वेरी लाइक फुल ऑफ वो कि लाइक आपको बोर नहीं होने देगा, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इट इज नॉट लाइक सेम स्टोरी जो हर जगह होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती है कॉलिन हूवर। इसमें प्रोटैगनिस्ट का नाम मैं भूल गई और ना ही पीछे लिखा है, सॉरी, आई एम सॉरी। माइल्स एंड, एक मिनट, माइल्स लड़के का नाम, टेट, माइल्स एंड टेट, ठीक है। पीछे एक तो बहुत ही अच्छा कोट लिखा है, लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू। Hearts get infiltrated, promises get broken, rules get shattered, love gets ugly. That's why it is called ugly love. Quite nice. Then we have Heart Bones. हार्ट बोन्स वापस सेम मतलब वैसा टाइप का है, जिसमें लाइक मुझे याद है कि इसमें जो फीमेल लीड है शी प्रिटेंड्स टू बी समवन, या फिर मेल लीड प्रिटेंड्स टू बी समवन, वैसा वाला। यू नीड टू रीड दिस बुक, तब आपको समझ आएगा। इसमें भी बहुत ऐसे वो है, मतलब थोड़ा सा स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का बुक कह सकते हैं, मतलब पूरा नहीं बट काइंड ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप वाला बुक है। एंड इसमें भी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लास्ट में इट गेट्स लाइक पूरा ही अलग आपको वो कर देगा कि लाइक व्हाट वैसा। इसका भी पीछे का एक कोट पढ़ती हूँ, डैमेज्ड पीपल रिकॉग्नाइज द अदर डैमेज्ड पीपल, इट्स लाइक अ क्लब यू डोंट वांट अ मेंबरशिप टू, ठीक है। तो इट इज लाइक मतलब कॉलिन हूवर बहुत अच्छा बुक्स लिखती है, लाइक उसका माइंड वैसा होता है कि अगर आपको रोमांस फैंटेसी से हट के थोड़ा सा बुक्स चाहिए, इट इज मतलब इसमें भी रोमांस है, इसमें भी रोमांस है, ठीक है, बट नॉट फुल्ली बेस्ड ऑन रोमांस, बहुत थोड़ा सा अलग अलग आपको इसमें जॉनर मिलेगा। देन फॉर द थर्ड बुक वी हैव नवंबर 9। नवंबर 9 इज लाइक बहुत ही मतलब इसमें भी लास्ट में इट इज वेरी वो कि लाइक व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वाला। इसमें है फैलन और बेन, इसका नहीं बताया ना, हार्ट बोन्स का बेया ग्रिम, एंड लड़के का नाम लड़के सैमसन। ओके, तो ये वाला जैसे मैंने बोला नवंबर 9 बहुत सही है, मतलब इट माइट मेक यू क्राई वैसा वाला। इसका भी पीछे का मैं नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं पीछे का, मुझे लगता है मतलब कोट एंड ऑल, बट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कोट्स है। कॉलिन हूवर को कोट्स लिखना अंदर बहुत पसंद है, इट्स लाइक कि आप किसी बुक को रिमेम्बर कर पाओ ऐसे कोट से। लास्ट बुक जो मेरा फेवरेट है कॉलिन हूवर का, विच इज वेरिटी गाइस, इसी का तो मूवी अडेप्टेशन होगा। एंड लाइक मेरे को बस यही उम्मीद होता है सारे बुक्स का मूवी अडेप्टेशन पे, जैसे कि लाइक इट इज क्वाइट हार्ड मूवी अडेप्टेशन करना किसी बुक का, बिकॉज सारे रीडर्स का अलग अलग इमेजिनेशन होता है। मैं जो इमेजिन कर रही हूँ दूसरा रीडर वो इमेजिन नहीं कर रहा होगा, मे बी वो किसी और वे में इमेजिन कर रहा होगा। तो आप मूवी अडेप्टेशन करते हो तो सबको एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ मे बी इट विल टर्न आउट समथिंग लाइक दिस। तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। वेरिटी इज समथिंग विच मैं थोड़ा सा इसको स्पूकी हॉरर कहना चाहूंगी। एंड इसका एक और एक मतलब लास्ट वाला पार्ट है जिसमें लाइक बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है। इट इज स्पूकी बिकॉज इसमें जो है 3 लोग है, ठीक है, यहाँ पे। तो लास्ट में इट इज लाइक कि जो मतलब डिसेबल्ड होती है वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। इट्स लाइक एन ओपन एंडिंग ये बुक, ठीक है। तो जो ओपन एंडिंग है इट इज लाइक अप टू द रीडर्स की वो कैसा लेना चाहता है। बट इसका जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा, उसमें इट इज क्लियर कि वो मतलब ओपन एंडिंग मतलब कंक्लूजन है कि बेसिकली हुआ क्या था। सो वो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है एंड आई वांट टू रीड इट, ठीक है। एंड इट इज वेरी नाइस एंड वेरी स्पूकी, माय किड यू नॉट। मैं रात को 2 बजे बैठ के पढ़ रही थी इसे हॉल में अकेले एंड मैं डर गई, लिटरली डर गई। So this is very nice. Colin Hoover, this is a work of art. Next we have different books from different authors. बहुत ही अच्छे authors है, but कुछ बुक्स है जो मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो मी एंड माई फ्रेंड सोमाली, व्हाट वी डू इज वी बाय बुक्स, ठीक है। वो लेती है एक, मैं एक लेती हूँ, देन वी रीड, वी स्वैप, वी गिव इट टू ईच अदर टू रीड, एंड वैसा वाला कि लाइक पैसा भी बचे, हम बुक्स पढ़ भी ले। शी इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज रीडर, सो इट इज लाइक बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस। तो बहुत सारा उसका बुक्स भी मेरे पास है, ठीक है, जिसने मुझे दिया है पढ़ने को। लेकिन आई एम रियली सॉरी सोमाली, बट मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो उसमें से पहला बुक आता है मुराकामी नॉर्वेजियन वुड, ये जापानीज बुक है आई गेस, ठीक है। एंड देखिए लग रहा था फिलोसॉफिकल बुक है, तो फिलोसॉफिकल बुक्स में मेरा थोड़ा सा कम अटेंशन स्पैन होता है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। देन वी हैव पंक 57 बाय पेनेलोपी डगलस। मैंने इसे पढ़ना शुरू किया बट देन आई थॉट इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, ठीक है। अगर आप फिलोसॉफिकल पढ़ना चाहते हो देन यू कैन हैव दिस और दिस, लाइक पढ़ सकते हो ये सारा। जापानीज बुक्स आर रियली अमेजिंग फॉर फिलोसॉफिकल रीडर्स। एक और एक जापानीज बुक है जो
ये मैंने खरीदा था उसको देने को, ठीक है, बट कभी वो मौका मिल नहीं पाया, मतलब मिले हम बहुत बार लेकिन भूल गए दोनों बारी। तो ये मैं पढ़ना शुरू की, द वैनिशिंग चेरी ब्लॉसम बाय ताक्युआ असाकुरा, ये भी जापानीज ऑथर है, बट इट इज़ अ रियली नाइस बुक। ये बहुत ही अच्छा स्लाइस ऑफ लाइफ वाला बुक है, सो आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव फिलोसॉफिकल बुक में ये एंड देन देयर वेयर नन बाय एगाथा क्रिस्टी, ठीक है। ये है, इसमें 10 स्ट्रेंजर्स को एक आइसोलेटेड आइलैंड में छोड़ दिया जाता है। ये सोमाली ने ही मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पे, बट क्या सोच के गिफ्ट किया था तूने मुझे ये, लेट मी आस्क यू। ओके, सो ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आउट ऑफ द जॉनरे बुक्स है ये सारा। देन वी हैव क्वाइट नाइस बुक्स जो थोड़ी सी क्यूट सी भी है, फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। सो वी हैव द आइस ब्रेकर, इसका भी मूवी अडेप्टेशन होने वाला है, आई हर्ड नेटफ्लिक्स पे आएगा। दिस इज बाय हाना ग्रेस एंड ये जैसे देखिए समझ हॉकी रोमांस है। रिसेंटली जो ऑफ कैंपस निकला है, ऑफ कैंपस से ही मतलब वैसा है, मतलब ऑफ कैंपस जैसा है, मतलब रिलेटेड नहीं है बट ऑफ कैंपस जैसा है, एंड इट इज ऑल्सो नाइस। मतलब ये सारे बुक्स पढ़ गई दिस, तो मुझे ऐसे पता ही से आइस स्केटर मतलब फिगर स्केटिंग करने का मन किया, बट सैडली कोलकाता में ये सब अवेलेबल नहीं है, सो आई कांट। एंड आइस ब्रेकर भी बहुत अच्छा बुक है, इसका भी एक कोट पे पढ़ के बताती हूँ। स्पार्क्स फ्लाई बट एनास्टेशिया इजंट वरीड बिकॉज शी कुड नेवर लाइक अ हॉकी प्लेयर, राइट। ये सारे ऑफ कैंपस आपने देखा है, अगर देखा है देन यू नो कि इसमें हैना भी मतलब हॉकी प्लेयर को कभी डेट नहीं करेगी, वैसा कुछ ट्रोप था, इसमें भी वैसा है। व्हाई पीपल हेट हॉकी प्लेयर, व्हाई। देन फिर है द सेवन हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो बाय टेलर जेनकिंस रेड, ये बहुत ही अच्छा बुक है, लाइक थोड़ा सा वो है, मतलब देखिए समझ आ रहा होगा एवलिन ह्यूगो का सेवन हस्बैंड्स। सो मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगी लास्ट में क्या हुआ है, क्या स्टोरी है इसका, गो रीड इट, इट इज क्वाइट नाइस। वो मतलब दिमाग खोलने वाला बुक जैसा टाइप का है। देन फॉर द फर्स्ट टाइम रीडर्स में जो भी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि फर्स्ट टाइम रीडर्स को क्या पढ़ना चाहिए, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट अ थाउजेंड बॉय किसेस, ठीक है, बाय टिली कोल। बहुत ही क्यूट सी बुक है, अ किस लास्ट सम मोमेंट बट कैन चेंज अ लाइफ टाइम, ठीक है। इसका बट मेरे को लगता है थोड़ा सा सैड एंडिंग है, बट इट इज नाइस सैड एंडिंग, इफ यू गेट व्हाट आई मीन। मतलब आप पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो क्या मैं बोलना चाहती हूँ, सो इट इज क्वाइट नाइस। अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर है तो आप ये पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आपको एना हुआंग या कॉलिन हूवर से शुरू करना है, और कॉलिन हूवर को ज्यादा हो जाएगा वो थोड़ा सा, मतलब एना हुआंग इज आल्सो ग्रेट फॉर फर्स्ट टाइम रीडर्स। देन वी हैव थिंग्स वी नेवर गॉट ओवर, ये भी एक सीरीज का पार्ट है बाय लूसी स्कोर, ठीक है। तो इसमें है नाओमी और सॉरी मुझे नहीं मिल रहा दूसरे प्रोटैगनिस्ट का नाम। ये बहुत ही बड़ा बुक है, बहुत एज यू कैन सी, ठीक है, स्लो बर्न है थोड़ा, बहुत सारा प्लॉट्स है, वैसा बुक है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अच्छा है, इट इज क्वाइट नाइस बट नॉट फॉर मी वैसा वाला बुक, ठीक है। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी SMUT वाले बुक्स अच्छे लगते हैं। Then we have सोमाली का बुक वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड बाय दुर्जय दत्ता। दुर्जय दत्ता बहुत अच्छे राइटर है, इंडियन राइटर है। ये भी मैंने आधा पढ़ा फिर नहीं पढ़ा मैंने, आई एम सॉरी। ये भी अच्छा है। देन वी हैव द स्पेनिश लव डिसेप्शन बाय एलेना आर्मस, ये भी अच्छा है। ये वर्क प्लेस रोमांस है, मतलब ऑफिस रोमांस है, तो अगर आपको ऑफिस रोमांस पढ़ना अच्छा लगता है देन गिव इट अ ट्राई, बहुत अच्छा है। इसका भी पीछे का कोट है, वेडिंग इन स्पेन द मोस्ट इन्फ्यूरिएटिंग मैन, 3 days टू कन्विंस योर फैमिली यू आर एक्चुअली इन लव। एक्चुअली हाँ मुझे याद आई, ये ऑफिस रोमांस भी है और ये वो है फेक, वो फेक लव नहीं, फेक रोमांस आई गेस, हाँ। सो दैट्स इट फॉर माय बुक्स। सो दिस वाज ऑल द बुक्स दैट आई हैड, एंड अगर कोई मुझसे पूछे कि इन सारे बुक्स में से मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगता है, आई वुड डेफिनेटली से वेरिटी बाय कॉलिन हूवर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड देन इफ थोड़ा सा लाइट हार्टेड बुक अगर कोई बोलेगा तो एनीथिंग फ्रॉम एना हुआंग, ठीक है, वो सारे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। सो इफ यू गाइस हैव एनी सजेशंस फॉर मी कि मैं ये बुक ट्राई करूँ वो बुक ट्राई करूँ, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू गाइस लव दिस वीडियो प्लीज लाइक द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल @sati251। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।